Okay, so we'll start with a quick revision of what we have learned in the last session. So if you remember, we started with thermal expansion और अभी इस स्टेज पे पता होना चाहिए what is the meaning of thermal expansion. So thermal expansion मतलब basically when matter is heated. When I say matter, we are strictly referring to solids in this case. When matter is heated, they normally expand, and when the temperature, when they are cooled, they contract. They are seen to shrink. So solids when heated expand, and when cooled they shrink, they contract. So what is happening is, due to change in temperature, the dimensions of a solid are changing. So change in temperature of a solid causes change in its dimension. अब when I say change तो increase भी हो सकता है, decrease भी हो सकता है. हम यहाँ पे strictly expansion की बात कर रहे हैं. मतलब when there is increase in temperature, then there will be increase in dimensions, and this property is known as thermal expansion. And as we know, there are three types of thermal expansion: linear, aerial, and volume. So in case of linear expansion, you have a body like a rod. You heat that body and it expands. क्योंकि उस केस में सिर्फ चेंज इन लेंथ हुआ तो उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपांशन. दूसरे केस में यू हैव अ सरफेस लाइक अ प्लेट, मे बी यू हैव अ प्लेट, मेटल प्लेट, उसको आपने हीट किया तो उसका एरिया बढ़ेगा, सो देयर इज चेंज इन एरिया, and then we say there is aerial expansion, and then finally you have volume expansion. So we started with the first type yesterday. So the increase in length of a body like rod due to increase in temperature is called as linear expansion. अब कुछ बुक्स में change in temperature बोलने की जगह पे बोला है thermal energy. मतलब they say the increase in length of a body due to thermal energy. Thermal energy मतलब increase in temperature. क्योंकि टेम्परेचर तब इंक्रीज होगा जब आप उसको हीट करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, और हीट मतलब थर्मल एनर्जी. सो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन इट इज नोन said to be linear expansion. Okay, you have a rod. Let us consider a rod of length L. When you increase the temperature of this rod by delta T, then it is seen that कि इसका जो length है वो बढ़ जाता है by an amount delta L. So you need to know this. Due to increase in temperature delta T, there is increase in length by an amount delta L. Okay. और अगर आपको याद होगा तो I told you yesterday, it is seen that ये जो increase in length हुआ, it depends on two factors. एक तो original length मतलब initial length, and it depends on change in temperature, increase in temperature. या फिर आप बोल सकते हो डेल्टा L by L is proportional to डेल्टा T. इसको आप बोलते हो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ. तो फ्रैक्शनल इंक्रीज, फ्रैक्शनल कब बोलते हैं? जब चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ करते हैं तो बोलते हैं फ्रैक्शनल. तो फ्रैक्शनल इंक्रीज, क्योंकि यहाँ इंक्रीज हो रहा है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, राइट? तो जब आप ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को यहां से हटाओगे, when you remove this constant of proportionality, you get delta L by L equal to alpha delta T. Correct? So you have delta L by L equal to alpha delta T, where alpha is called as coefficient of linear expansion. तो यहाँ तक हमने कल देखा था. Now to continue this point onwards, अब हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन. हमने अभी तक अल्फा मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका हमने अभी तक डेफिनेशन नहीं बनाया, तो वी हैव टू डिफाइन दिस. तो सबसे पहले, एज यू कैन सी, ये जो अल्फा है, दिस अल्फा कैन बी रिटन एज डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, राइट? तो अल्फा इज डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी. कुछ नहीं किया, सिर्फ अल्फा को यहाँ पे मैंने डेल्टा टी को यहाँ शिफ्ट कर दिया. सो डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ. तो अब आपको पता होना चाहिए चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ एट हायर टेम्परेचर टी माइनस लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस. नॉर्मली हम लोग लोअर टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं नॉर्मली. रेफरेंस टेम्परेचर क्यों? देखो, द थिंग इज, अल्टीमेटली आपको सिर्फ कंपेयर करना है कि पहले लेंथ इतना था, अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लेंथ बढ़ गया.
तो इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, यू कैन टेक 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, व्हाटएवर इट इज, यू कैन इवन टेक रूम टेम्परेचर। हमको जो लोअर टेम्परेचर है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए चाहिए होता है, तो नॉर्मली व्हाट वी डू इज हम लोग रेफरेंस टेम्परेचर ले लेते हैं 0 डिग्री आइस पॉइंट, तो अपॉन इनिशियल लेंथ L0 एंड डेल्टा T, राइट। अब एक काम करो, अब ये जो आपने लिखा है वो एक्सप्लेन कर दो, क्या क्या है हमारे पास। where what you have is delta L, which is LT minus L0, which is increase in length. This is increase in length, right? Then LT क्या था? LT था length at higher temperature T, and L0 क्या है? It is length at lower temperature, और of course lower temperature हमने 0 डिग्री लिया है, lower temperature 0 डिग्री Celsius. Good. What is delta T? Change in temperature, increase in temperature to be precise. तो इसको change लिखो या increase लिखो, increase in temperature. Good. So now you want to define what is alpha, क्योंकि अभी तक हमने अल्फा डिफाइन नहीं किया, we have not yet defined alpha. See, अल्फा डिफाइन करना है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, अल्फा इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी व्हिच अपीयर्स, ऑफ कोर्स इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बट यू नीड टू हैव अ डेफिनेशन फॉर इट। तो अल्फा की वैल्यू, अल्फा का डेफिनेशन करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए व्हाट वी डू इज, if I take increase in temperature as 1 degree Celsius, तो मैं टेम्परेचर कितने से बढ़ा रहा हूँ? 1 डिग्री, जस्ट बाय 1 डिग्री। तो क्या होगा, दिस इक्वेशन अल्फा, देन अल्फा विल बिकम LT माइनस L0 अपॉन L0, क्योंकि डेल्टा टी क्या हो गया? 1 है ना, डेल्टा टी इज 1, करेक्ट। तो अब आप डिफाइन कर सकते हो, अब अल्फा कैसे डिफाइन करोगे आप? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, एक एक वर्ड अच्छे से सुनना। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, लेकिन ओरिजिनल लेंथ कब लिया था? 0 डिग्री पे। तो अल्फा कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। फॉर डेल्टा टी कितना है? फॉर 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अल्फा is a ratio of increase in length upon original length. Original length is taken at 0 degree Celsius. For delta T1 मतलब for 1 degree change in temperature या फिर increase in temperature, तो define कर लेंगे, हम बोलेंगे coefficient of linear expansion. Coefficient of linear expansion can be defined as increase in length per unit original length at 0 degree Celsius, right? For 1 degree increase in temperature. For 1 degree increase in temperature. मतलब इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक रॉड होता, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री आइस पॉइंट पे, अगर मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दिया, 0 से 1 कर दिया, तो कितना चेंज हुआ उसको बोलेंगे अल्फा। सो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ। इट इज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री फॉर 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज हाउ यू डिफाइन इट। अब one thing we have not seen so far is, बहुत सिंपल है, देखो ये क्या है? लेंथ है ना, ये क्या है? लेंथ की यूनिट कैंसल, सिर्फ डेल्टा टी कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में, तो पर डिग्री सेल्सियस मतलब 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, या फिर पर केल्विन। और क्योंकि आपको पता है कि जितने मतलब ईच डिवीजन ऑन सेल्सियस स्केल corresponds to each division on Kelvin scale. So that is why SI unit you can say, SI unit of alpha of course,
SI unit of alpha is per degree Celsius or per Kelvin. This is what you have. Good. यहाँ तक क्लियर? अब एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि आने वाले दो टॉपिक दे आर वेल कनेक्टेड, एग्जैक्टली ऐसा ही चलेगा। तो हम स्टार्ट किए थे हमने लीनियर एक्सपेंशन के साथ। सिंपल है, यहाँ पे इन दिस केस व्हाट इज इंक्रीजिंग इज लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमने स्टार्ट किया बाय टेकिंग अ रॉड ऑफ इनिशियल लेंथ L, तो हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया बाय डेल्टा T, तो लेंथ चेंज हो गया बाय डेल्टा L, right? Or then what we see is fractional increase in length is directly proportional to increase in temperature. मतलब delta L by L is proportional to delta T. So delta L by L equal to alpha delta T, where alpha is constant of proportionality known as coefficient of linear expansion, right? So alpha is delta L by L delta T, LT minus L0 upon L0 delta T. Good. फिर हमको डिफाइन करना था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हमने बोला कि अगर चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री है, तो इन दैट केस व्हाटएवर इंक्रीज इन लेंथ इज देयर पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा। अब द क्वेश्चन हियर इज, तुमको जैसे मैंने बताया कि हमने इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री क्यों लिया, हमको एक रेफरेंस टेम्परेचर चाहिए। डजंट मैटर इफ यू टेक 0 डिग्री और नॉट, एक रेफरेंस, क्योंकि हम लोअर टेम्परेचर पे पहले बॉडी को रखेंगे, फिर हीट करेंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर लेंथ बढ़ेगा, तो कंपैरिजन तो करोगे ना, पहले इतना था अब इतना हो गया। तो इनिशियल जो टेम्परेचर है इट इज जस्ट फॉर रेफरेंस। इट इज सीन दैट कि जो अल्फा की वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं होती। मतलब इनिशियल टेम्परेचर जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री रखना है, यू कैन कीप इट एनी टेम्परेचर यू वांट। सो इट इज सीन दैट value of alpha does not change significantly. Change तो होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता है। Does not change significantly with temperature. Right? Therefore what you can write down is alpha equal to, क्या था अल्फा, डेल्टा L अपॉन L डेल्टा T। अब इसको आप लिख सकते हो L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1, where L2 is length of the rod at higher temperature T2, L1 is length at lower temperature T1, where L2 is length at higher temperature T2 and L1 is length at lower temperature T1। आप चाहो तो लोअर टेम्परेचर को 0 डिग्री ले सकते हो, जैसे हमने स्टार्ट किया था वहां से, राइट? तो इट इज नाउ आवर चॉइस, रेफरेंस कौन सा लेना हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि अल्फा does not change significantly with temperature. Good. You know, there is a reason behind why I like this chapter so much. Yes, so you understand what I am trying to say. So एक duplicate, just a minute, I'll take my time duplication करने के लिए। Okay, so what I have is this over here, then ये एक copy, and of course you go here, then the last one, this one, एक all right, just a minute, ठीक है? Oh, okay, good, this one is remaining, so this one was remaining, तो अब आ गया यहाँ पे ये done। तो next in the list is एरियल एक्सपेंशन, तो नंबर 2, और आपका भी काम इसमें बहुत कम होगा क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो नाउ इन दिस केस इंस्टेड ऑफ अ रॉड यू हैव अ प्लेट, so you have a plate of initial area, let us take A। ये हमारे पास एक प्लेट है 2 डायमेंशनल, इसका इनिशियल एरिया है A। फिर क्या हुआ,
फिर हमने इसको हीट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ जाएगा, इनिशियल एरिया इज ए, फाइनल एरिया इज ए प्लस डेल्टा, सिंपल। तो द इंक्रीज इन एरिया ऑफ अ बॉडी लाइक अ मेटल प्लेट due to increase in temperature is known as aerial expansion. The increase in area of a body like a plate due to increase in temperature is known as aerial expansion. Consider a plate of area A. When the temperature of the plate is increased by delta T, then its area increases by delta A. So when consider a plate of area A, temperature is increased by delta T, then its area increases by delta A. It is seen that fractional increase in area is directly proportional to temperature. Very good. Then कंप्यूटर में हम कैसे करते हैं, यू नो, फाइंड एंड रिप्लेस, तो यहां पे भी फाइंड एंड रिप्लेस। Okay, so this makes my job very easy. Good. So you have delta A by A proportional to delta T. Delta A by A equal to some constant. This time constant is beta. Beta is constant of proportionality known as coefficient of aerial expansion. इसको superficial भी बोलते हैं, by the way. Therefore, beta equal to delta A by A delta T, which is AT minus A0 upon A0 delta T, where delta A, which is AT minus A0, is increase in area. AT is in area at higher temperature T. A0 is area at lower temperature 0 degrees Celsius. So delta A is AT minus A0. AT is area. A0 is again area. Good. राइट, तो ऐसा ही पूरा पूरा रिपीट करते जाना। अब सिमिलरली जैसे हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन डिफाइन किया था अल्फा, वैसे ही हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन डिफाइन करेंगे। सेम इफ डेल्टा टी इज 1 डिग्री सेल्सियस, तो अब बीटा विल बी AT माइनस A0 अपॉन A0। So coefficient of aerial expansion can be defined as increase in area per unit original area at 0 degree for 1 degree increase in temperature, right? This is what you have. And SI unit of beta is per degree Celsius or per degree Kelvin. Same है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये delta A by A will be unit wise. डेल्टा ए मीटर स्क्वायर, ए मीटर स्क्वायर, तो बचा क्या सिर्फ डेल्टा टी, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो कर लो कंप्लीट। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन कैन बी डिफाइंड एज इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया फॉर 1 degree increase in temperature, right? Good. It is seen that value of beta does not change significantly with temperature. Therefore, beta can also be defined at different lower temperatures other than 0 degree. So delta A और A delta T आ जाएगा आपका A2 minus A1 upon A1, where A2 is area at higher temperature T2, A1 is area at lower temperature T1. Very good. Done. Yes, so simple. And what is left? Volume. तो अब वॉल्यूम का केस भी एग्जैक्टली, नॉट रियली एग्जैक्टली, वॉल्यूम के केस में थोड़ा सा चेंज है। वी विल सी व्हाट इज द चेंज देयर, बट देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ चेंज। ओके, लिटिल बिट ऑफ चेंज इज देयर, थोड़ा सा चेंज है उसमें। वी विल सी व्हाट इज दैट चेंज soon. Then okay, so the next
in the list is volume expansion. तो अब यहाँ पे what you will say is the increase in volume. सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ. So now what you can do is you can take a solid ball या फिर cube. So you have let us say you have a sphere of volume V. तो हमारे पास एक solid sphere है जिसका initial volume है V. अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा. So the new volume is V plus delta V, right? So the increase in volume of a body like a sphere, solid sphere, due to increase in temperature is known as volume expansion. The increase in volume of a body like a sphere, solid sphere है ये, ball है, right? Due to increase, याद रखना solid sphere, क्योंकि अगर hollow sphere लोगे, focal ball, plastic, and when you increase the temperature, area increases, क्योंकि अंदर तो कुछ था ही नहीं तो क्या बढ़ेगा, area is known as volume expansion. So consider a solid ball. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. Consider a solid sphere. Consider a solid sphere of what volume V. When the temperature of the sphere, पीछे में लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखना रह गया हमारा temperature of the plate. यहाँ पे temperature of the what? Sphere, whatever it is. Then, when the temperature of the sphere increases by delta T, then its volume increases by delta V. It is seen that fractional increase in volume is directly proportional to increase in temperature. Consider a solid sphere of volume V. When the temperature of the sphere or of the body increases by delta T, then its volume increases by delta V. It is seen that fractional increase in volume is directly proportional to increase in the temperature. फिर यहाँ पे वापस A की जगह पे लिखोगे V, बीटा की जगह पे लिखोगे गामा. तो यहाँ पे आएगा गामा. Yes, this is what you will have. Where gamma is constant of proportionality known as coefficient of volume expansion. Volume expansion. Therefore, gamma equal to delta V by V delta T. So delta V कहाँ गया? गुम हो गया. Anyways, delta V by V delta T. Here it is. Anyways, and this is Vt minus V0 upon V. Okay. Then, of course, where delta V is Vt minus V0, which is increase in volume. तो यहाँ पे भी हमें लिखना चाहिए था increase in area. ये रह गया था. तो fill in the blanks. Back to school. Okay. So delta V is Vt minus V0 increase in volume. And At is की जगह पे Vt, where area की जगह पे volume. Volume at higher temperature. इसकी जगह पे V0. You have V0 where V0 is volume at lower temperature. Good. Then वापस से define करने के लिए, किसको define करने के लिए? Coefficient of volume expansion को define करने के लिए ये delta T की value को कर दो 1 degree. So if delta T is 1 degree, then gamma will be Vt minus V0 by V0. Thus, coefficient of volume expansion can be defined as increase in volume per unit original volume at 0 degree for 1 degree increase in temperature. Coefficient of volume expansion defined as increase in volume per unit original volume at 0 degree Celsius. तो यहाँ पे आएगा gamma. अब this point onwards, there is a change here. It is seen that
it is seen that the value of gamma depends on temperature. So you can say it is seen that value of gamma is not constant with temperature. It is not independent of temperature. यहाँ पे gamma की value change होती है with temperature. And it is found that कि initially value of gamma increases with increasing temperature and then becomes constant. मतलब you have a plot of temperature and you have plot of gamma. और अभी आपको तो पता ही है, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, सबका यूनिट क्या है? से पर केल्विन, राइट? और आप आगे आज ही हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में अल्फा, बीटा, गामा, इसकी वैल्यू 10 पावर -5 में आती है नॉर्मली. तो इट इज 10 पावर -5 पर केल्विन. तो फॉर वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट इट इज सीन दैट मतलब द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट इनिशियली इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर. जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अनलाइक जैसे अल्फा और बीटा के केस में हम लोगों को कंपलसरी नहीं था, इट वाज नॉट नेसेसरी कि हम अल्फा बीटा को 0 डिग्री पे ही डिफाइन करें. क्यों? क्योंकि वहां पे इन दैट केस इट वाज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. तो अगर मैं अल्फा और टेम्परेचर प्लॉट करता, किया नहीं है, अगर करता तो यू वुड हैव सीन कि मोर और लेस ये कांस्टेंट है. तो अल्फा और बीटा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज ही नहीं होती है, इट इज कांस्टेंट. बट गामा की वैल्यू इट चेंजेस विद टेम्परेचर. इसलिए हमें वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गामा हमको डिफाइन हमेशा करना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब लोअर टेम्परेचर इज टेकन टू बी 0 डिग्री. अनलाइक, क्योंकि यहाँ पे तो आपने बोल दिया ना कि अरे चेंज ही नहीं होता है, फिर मैं लोअर टेम्परेचर 0 क्यों रखूं? क्योंकि अल्टीमेटली जब आपको चेंज मेजर करना है, चेंज कब मेजर करोगे? इनिशियल पता होगा और फाइनल पता होगा, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे फिर बोलोगे इतना चेंज हुआ. तो अब क्वेश्चन ये आता है इनिशियल मतलब कितने टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर के साथ तो लेंथ भी चेंज हो रहा है और एरिया भी चेंज हो रहा है. तो आपको पहले एक लोअर टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा. तो अल्फा बीटा के केस में आपने पहले लोअर टेम्परेचर लिया था 0 डिग्री, फिर आपने 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब 0 डिग्री से कहां गए? 1 डिग्री पे गए, और आपने देखा लेंथ में कितना चेंज और एरिया में कितना चेंज. तो चेंज इन लेंथ को डिफाइन कर दिया कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, चेंज इन एरिया को डिफाइन कर दिया कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन. करेक्ट. फिर आप बोलते हो बट व्हाट वी नो इज कि अल्फा की वैल्यू या फिर बीटा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं होती. मतलब इनिशियल टेम्परेचर 0 हो या फिर 10 डिग्री हो, 0 से 1 किया या 10 से 11 किया, राइट, या फिर 20 से 21 किया, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन योर रेफरेंस टेम्परेचर कि आप 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हो या फिर किसी और टेम्परेचर को आप इनिशियल टेम्परेचर ले रहे हो. डज नॉट डिपेंड. बट हियर इन केस ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट इज नॉट कांस्टेंट. इसका 0 डिग्री पे बिहेवियर अलग है. यू सी 0 से 1 गया तो थोड़ा सा वैल्यू इसका अलग आएगा, मतलब वॉल्यूम इज एक्सपैंडिंग इन अ डिफरेंट बाय अ डिफरेंट अमाउंट. लेकिन अगर वही मैं बाकी टेम्परेचर पे देखता हूं तो सेम चेंज नहीं है. देयर इज नो चेंज, इज नॉट द सेम इन वॉल्यूम. मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री गए तो वॉल्यूम अलग अमाउंट से चेंज हो गया, और 20 से 21 गए तो अलग. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वैल्यू ऑफ गामा इज नॉट कांस्टेंट. तो ये जो लास्ट पैराग्राफ था, यू कैन नॉट राइट इट इन द सेम वे. सो हमने क्या लिखा था? इट इज सीन दैट वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली विद टेम्परेचर. इसलिए डजंट मैटर ना तुम पहला टेम्परेचर 0 डिग्री ही लो, नो, नॉट रिक्वायर्ड. आपको इनिशियल टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर जो लेना है वो ले लो. सिर्फ इतना है कि चेंज शुड बी 1 डिग्री. ठीक है. एनीवेज, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे क्या बोलेंगे हम बोलेंगे गामा अनलाइक व्हाट? अल्फा एंड बीटा depends on temperature.
it is seen that do you see gamma increases with temperature. Seen that initially gamma increases with temperature and then becomes constant और यहाँ जब कांस्टेंट होता है roughly this value is 500 Kelvin approximately. Okay, so this is what you can say. So that's it. That's all about these three alpha, beta, and gamma. In the next session, we will actually see the relation between alpha and beta, beta and gamma, and alpha and gamma. Now we will solve some numericals. तो हमको कुछ numerical solve करने हैं आज. So let us start with example 7.8. Let us start with example 7.8. The length of a metal rod at 27 degrees Celsius is 4 centimeter. The length increases to 4.02 centimeter when the metal rod is heated up to 387 degrees Celsius. Determine the coefficient of linear expansion of the metal rod. So सबसे पहले in the given quantities what you have is T1 27 degrees Celsius room temperature. Length is L1 4 सेंटीमीटर. मैं इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल आता है. डेल्टा एल सेंटीमीटर में, नीचे एल भी सेंटीमीटर में. तो हाँ, डायमेंशंस ऑफ लेंथ डज नॉट मैटर हियर. हायर टेम्परेचर आपको दिया है 387 डिग्री सेल्सियस. लेंथ आपको दिया है 4.02 सेंटीमीटर. आपको फाइंड करने के लिए बोला है अल्फा. फॉर्मूला यू नो, आपको पता ही है, अभी अभी मैंने बताया फॉर्मूला में दैट अल्फा इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 C2 माइनस T1. अल्फा इक्वल टू L2 4.02 माइनस 4 अपॉन 4 387 27. तो अब this is 0.02 upon 4. This is 360. एग्जैक्ट कैलकुलेशंस तो मैं नहीं बताऊंगा, खुद को करने हैं, लेकिन मैं आपको अप्रोक्सीमेट बताऊंगा कि हाउ कैन यू रीच टू अप्रोक्सीमेट आंसर. अल्फा इक्वल टू 2 into 10 पावर माइनस 2. ये 4 into 36 into 10 है. 4 into 36 में 9 into 4, करेक्ट है ना. 36 is 9 into 4 into 10. नीचे का 10 ऊपर गया. गुड. अब 1 and 2, राइट. अब ऐसा क्यों किया मैंने? बिकॉज यू सी यू कैन डू दिस. नीचे अगर आप चेक करोगे तो 2 into 2 into 2 है ना. 4 मतलब क्या? 2 into 2 और एक 2. कितने 2? 3 मतलब 2 raised to 3. 1 upon 2 raised to 3. 9 मतलब 3 का स्क्वायर और ऊपर क्या है? 10 पावर माइनस 3. बराबर. क्लियर है यहाँ तक? 1 upon 2 raised to 3 मतलब 1 by 2 raised to 3 और 1 by 3 का स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 3. 1 by 2 is 0.5. 0.5 का क्यूब 0.125 है, राइट. तो 0.125 1 by 3 is 0.33. 0.33 का स्क्वायर इज 33 स्क्वायर 1089. 33 का स्क्वायर इज 1089. तो 0.33 का स्क्वायर इज 10.89. 10.89 into 10 पावर माइनस 3. अब what you can do is, अगर आपको कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना है तो ये इसको लिख दो 125 into 10 पावर माइनस 3. इसको रफली 11 मान लो फॉर द टाइम बीइंग, राइट. 125 into 11 is 125 into 10 is 1250 और 1375 राइट.
इंटू 10 पावर -6, इसका इसको वापस दे दिया -3, करेक्ट। आर यू श्योर? एक गलती है जो अभी तक तुमने नोटिस नहीं की, यू नॉट नोटिस्ड इट। देखो ऐसा है, व्हाट यू शुड डू इज, अगर गड़बड़ होने के चांसेस लगते हैं ना तो एक हाथ स्टेप बढ़ा लो, बिकॉज अदरवाइज आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। मैंने इससे पहले बता दिया कि अल्फा की वैल्यू 10 पावर -5 के आसपास आना चाहिए, राइट। हमारा आंसर क्या आया था? -3। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो ये जो गड़बड़ है इसको हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। तो अब एक काम कर सकते हो, इसको लिख दो पहले 0.5, मतलब 5 इंटू 10 पावर -1 का क्यूब। ये 1/3 है, मतलब 0.33 है, मतलब 3.3 इंटू 10 पावर -1 का स्क्वायर। ये थी गड़बड़। यू सी, हमने क्या लिखा? हमने लिखा डायरेक्टली 10.89, बराबर। 3.3 का स्क्वायर 10.89, 10 पर -1 का स्क्वायर भूल गए। 1/3 इज व्हाट? 0.33, मतलब 3.3 इंटू 10 पावर -1। क्लियर यहां तक? इंटू 10 पावर -3। अब ये है आपका 125 इंटू 10 पावर -3 इंटू 3.3 का स्क्वायर इज 10.89 इंटू 10 पावर -2। ये मिसिंग था, ये मिसिंग था, 10 पावर -2 was missing. So that is what I was telling you, that you need to be very sure about calculations. तो अब ऐसा है, this 125 into 11 अभी आपने बता दिया 1375 into 10 पावर -3 और ये 10 पावर -5, बराबर। ये हो गया 1.375 into 10 पावर -5, क्या per Kelvin या फिर per degree Celsius. So this is what you will get. And if you want to see exact answer, so I will tell you what is exact answer. If I have done the calculations, it is 1.38. Next question. Length of a metal rod at temperature 27 degree is. So in the given quantities, temperature T1 is 27 degrees Celsius. Length of the rod L1 is 4.256 meter. Find the temperature at which the length of the same rod increases to. मतलब the new length is 4.268 meter. यहीं पे आप डेल्टा एल फाइंड कर लो, L2 माइनस L1, सब्ट्रैक्ट कर लो 0.012 मीटर, है ना, right? Then and what is given to you is alpha. Alpha for iron is 1.2 into 10 power -5 per Kelvin. That, as I told you, you will see कि alpha की value is always 10 power -5. Then what you're supposed to find out is temperature T2. You're supposed to find out what is T2. Simple है, फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताया, हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। You know that alpha is delta L upon L, मतलब ऐसा लिखने से तो फिर I will write down L2 minus L1, L2 minus L1, L1 T2 minus T1. Then simple इस T2 minus T1 को शिफ्ट कर देता हूँ, T2 minus T1 equal to L2 minus L1 upon L1 into alpha, right? So here you will have T2 equal to L2 minus L1 upon L1 into alpha plus T1. L2 minus L1 is 0.012 upon L1 is 4.562. 4.256. तो हमने सब्ट्रैक्शन प्रॉपर किया ना, यस, गुड। 256 अल्फा की वैल्यू 1. ओके 1.2 ना, तो 1.2 को लिख देंगे 12, इसको कर देंगे
माइनस 6, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 प्लस T1. T1 इज नहीं, T1 इज 27. T1 इज टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर इज 27. वेरी गुड. तो इट इज प्लस 27. हमारा काम हमेशा आसान होता है. 12 इंटू 10 पावर माइनस 3, 4.256 इंटू 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 को ऊपर ही भेज देता हूँ. ऊपर भेज दिया तो प्लस 6 कैंसल है, कैंसल. प्लस 27. मतलब करना क्या है आपको, 4.256 का रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि 10 पर माइनस 6 प्लस 6 कितना है 3. 4.256 का रेसिप्रोकल लेना है, उसको 27 में ऐड करना है. अब अगर आपको रफली आंसर चाहिए अप्रोक्सीमेटली तो भी मिल सकता है. कैसे? तो ऊपर 1000 है, नीचे 4.25 है. अप्रोक्स हाउ मच इज दैट? 24, ओके. तो अगर आप एग्जैक्टली करोगे, नॉट रियली 24, 25, इट इज 250 के आसपास. अगर आप इसको एग्जैक्टली सॉल्व करते हो तो ये एग्जैक्टली आता है 234.9. कैसे? 10 पावर 3 तो है ही. रेसिप्रोकल टेबल आता है लॉग बुक के अंदर, उसमें 4.2 रो देखना, उसके बाद 5 नंबर का कॉलम देखना, फिर 6 मीन डिफरेंस देखना, फिर आ जाएगा 0.2349 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 234.9 प्लस 27, 261.9. क्या टेम्परेचर फाइंड कर रहे हो पर केल्विन? ओके, सो डन. सो दैट्स इट फॉर टुडे.